Hello everyone, welcome again to a very interesting topic that we are going to discuss today. तो ऐसे ही हमारे साथ आपको जुड़े रहना है और जितनी भी यहाँ पे हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आ रहे हैं जहां पे हम छोटे छोटे टॉपिक्स को बहुत ही इजी मैनर में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर रिवीजन फॉर द मिड टर्म एग्जाम्स एंड द अपकमिंग एग्जाम्स ऑल्सो। तो आज हम यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क के बारे में। देखिए जनरल टर्म में जैसे कि अभी मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ, राइट, आप भी मे बी डेफिनेटली बैठ के वीडियोस को बाद में देखने वाले हैं, करेक्ट। तो होता क्या है, हम कहते हैं हम काम कर रहे हैं, राइट, बट क्या एक्चुअली वहां पे वर्क हो रहा है? इन अ साइंटिफिक लैंग्वेज आर वी डूइंग एनी वर्क? जब हम मेंटली चीजों को लेके डिस्कस कर रहे हैं या कुछ सोच रहे हैं या हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या फिर कुछ और वर्क कर रहे हैं, तो वर्क एक बहुत जर्नलाइज टर्म है, बट साइंस में इसकी डेफिनेशन काफी कुछ अलग है। सो इन एवरी डे द बिलो एक्टिविटीज इफ वी आर टॉकिंग हेयर, आप यहां पे एक्टिविटीज देख पा रहे हैं, जो यहां पे नीचे एक्टिविटीज आप देख पा रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं लाइक we considered as a hard work because they requires a lot of time and efforts. Reading book or cooking food or doing yoga by sitting at a simple place itself. But despite of that much effort, you got amazed. According to the language of science, they are not doing any kind of work. But why? Why is though? क्यों यहां पे कोई काम नहीं हो रहा है? Let's understand the scientific definition of work. According to the scientific terms, work is considered to be done only when a force applied causes the displacement. So two very important terms here. What are these important terms? The first one is force and another is displacement. Right? Until or unless जब तक हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं और फोर्स के बाद भी अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वी कैन नॉट कंसिडर इट एज ए वर्क। आप कह सकते हैं, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ वॉल। अगर यहां पे एक वॉल है, मैं उस पर फोर्स लगा रहा हूं, बट द वॉल इज नॉट गोइंग टू डिस्प्लेस फ्रॉम इट्स पोजीशन। एम आई डूइंग एनी वर्क? डेफिनेटली नॉट। Along with the force, the displacement is also required. Let's see some examples here. When a girl pulls a trolley and it moves, work is being done. This is because the girl is exerting a force on the trolley, resulting in its displacement, my dear students. After that, we are going to understand the conditions for the work done, as we just talked about. Force must act on the body and the body must displace from its position due to the force applied on it. So examples you can see here. Here it is a work done, but here it is no work done because there is no displacement in the direction of force. So what is the formula for work done? We are definitely going to discuss it, but here it is a question for all of you. Read the following statement and complete it with a correct option. A force applied on a body is said to have done some work. Option A, if the body suffers no displacement. Option B, if the body suffers a displacement. Option C, if the mass of the body changes, if the size of the body changes. Definitely we know that the right answer is going to be option B. Work तभी होगा जब body अपनी position से displace होगी. Right? So option B here is the correct answer. Moving further, all these options are wrong. Next question here, a man pushes a wall and fails to displace it. Based on this information, which of the following is true? Work is done, but the displacement is zero. No work is done because force is not applied. Force definitely is applied there, so I don't think this option is correct, right? Work is done, but force is not applied. Again, not true. No work is done because displacement is zero. दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अभी हम लोगों ने ये डिस्कस किया बच्चों बिल्कुल अच्छे से कि फोर्स तो हम अप्लाई कर ही रहे हैं, बट वहां पे वर्क डन नहीं होगा बिकॉज वहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। और एक्चुअली जब आप फॉर्मूले के बारे में देखेंगे, अभी इन क्वेश्चंस को हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगर आप वर्क डन के फॉर्मूले की बात करें तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, Fs, और S यहां पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। सो व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ कांस्टेंट फोर्स,
ओके, कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स दे रोट, आई थॉट लाइक दैट कि यहां से फोर्स कहां चला गया. कांस्टेंट अप्लाइड फोर्स, द वर्क डन बाय द फोर्स इज मेजर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स F and distance s through which the body moves. So work done is equal to F into S. स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या हो जाएंगी बच्चों? डेफिनेटली अगर हम इसको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं, फोर्स न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, न्यूटन मीटर. ऑल्सो द स्टैंडर्ड यूनिट इज 1 जूल. तो क्या हम लिख नहीं सकते 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर? अब 1 जूल वर्क डन को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप इसी फॉर्मूले की हेल्प से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं. 1 जूल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन displaces an object by 1 meter in the direction of force. 1 joule is equal to 1 newton meter, and remember work done is a scalar quantity because scalar quantities are those quantities जिनके लिए हमें, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का रिक्वायरमेंट होता है, राइट? तो अगर हम वर्क डन की बात करें बच्चों, डेफिनेटली इट रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, कोई डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत हमें नहीं होती. दैट्स व्हाई इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एंड एक्चुअली इट इज अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज व्हिच आर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो एक केस यहां पे और बचता है जिसको हम आने वाली चीजों में कवर करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. आई होप यू एंजॉयड इट. थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग. बाय बाय, एंड अगेन इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स, डू टाइप इट इन द कमेंट बॉक्स. थैंक यू एवरीवन.